السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان سے آپ سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 17واں سیریل ہے. کل ہم نے آپ کو مختصراً یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیسے ہوا اور منگنی کیسی ہوئی. اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس میں کوئی داخل کرتا ہے تو اگر ان داخل کردہ رسومات کا تعلق ثواب سے ہوگا تو بدعت کہلائے گی. اگر وہ داخل کردہ رسومات کا تعلق لازم سمجھ کر کرے گا تو گناہ ہوگا، اور اگر ان رسومات کا تعلق عقیدے سے ہوگا تو شرک ہوگا، اور اگر ان رسومات کا تعلق لغویات سے ہوگا، بیہودہ چیزوں سے ہوگا، تو الگ الگ شریعت حکم لگائے گی. کبھی نامحرم کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بولے گی کہ گناہ ہو رہا ہے، کبھی اسراف اس میں ہوگا، پیسہ زیادہ خرچہ کیا جائے گا، اس کی بنیاد پر شریعت بولے گی کہ گناہ ہوگا. اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی تو شریعت حکم دے گی کہ یہ مباح ہے. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرنے پر نہ گناہ ہوگا اور نہ ثواب ہوگا. مثال کے طور پر ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کپڑا پہن کر بیٹھا ہوا نہیں ہے. کوئی بھی، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو چونکہ ان سب چیزوں کا تعلق بھی جو ہے وہ عبادت اور عقیدے سے نہیں ہے، لیکن ہم یہ جو کپڑا پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی چیز شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. کوئی ہم نے ایسی رسم نہیں اختیار کی ہے کہ اس رسم کی بنیاد پر ہم کو، یا ہم یہ کہیں کہ یہ کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں، اس کپڑے کے پہننے میں ثواب ہے. اگر بولیں گے تو بدعت کا گناہ ہوگا. یا یہ کہ یہ کپڑا کسی خاص کمیونٹی کی علامت ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبادت اور عقیدے کے علاوہ میں بہت سی گنجائشیں رہتی ہیں، جیسے میں نے ایک مثال دی کپڑے کی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ شریعت اس میں حکم لگاتی ہے. تو ہم جن رسومات کا ذکر کریں گے اس میں ہم آپ کو یہ وجہ بتائیں گے کہ اس میں فالٹ کیا آیا اور اس کا شریعت کیا حکم لگائے گی. اب مثال کے طور پر یہاں پر بھی ایک رسم ہے، اور یہ اتفاق سے رسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے بھی تھی. وہ یہ تھی کہ جب گھر میں لڑکی بالغ ہو جاتی تھی، یعنی جب اس کو پیریڈ آنے لگتا تھا، تو دروازے پر ایک جھنڈا لگاتے تھے. اپنے دروازے پر ایک جھنڈا لگاتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے گھر میں لڑکی ہے اور وہ شادی کے لائق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دم ختم کیا. وجہ کیا ہے کہ یہ ایک بیہودہ حرکت ہے. بیہودہ حرکت اس معنی میں ہے کہ عورت کے فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں جب اس حالت میں ہوں تو کم سے کم لوگ جانیں. آپ نے کیا کر دیا؟ ایڈورٹائز کر دیا. تو گویا کہ اس کی فطرت کے خلاف ایک رسم اختیار کر لی گئی. ایسے ہی اس علاقے میں یہ پورا علاقہ تمل ناڈو اور آپ کے آندھرا، کیرلا اور کرناٹک، ان علاقوں میں ایک رسم ہے پھول پہننا. وہ جو پھول پہننے کی رسم ہے وہ گھر سے جھنڈا نہیں لگایا جا رہا، لیکن سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جو ہے لڑکی بالغ ہوئی ہے. حالانکہ اس کے پیچھے ایک دوسری چیز بھی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر رشتہ بھیجے. حالانکہ اس کے لیے بدتمیزی کرنے کی یا اس قسم کی رسم اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رشتے سب اللہ نے طے کر رکھے ہیں، اس کو جہاں بھیجنا ہوگا وہ بھیجے گا.
अच्छा, फिर जब आपका उठना बैठना सोसाइटी में है तो लोगों को मालूम हो जाता बच्ची बड़ी हो गई है। ये जरूरत नहीं है कि आप जो है वो उसके लिए इश्तिहार करें, एडवर्टाइज करें और इस तरीके से रस्म अख्तियार करें। तो गोया कि ये एक लगाव हरकत हुई और इत्तेफाक से ऐसी हरकत है कि जो बहुत पुरानी है, फिर तरीका थोड़ा सा क्या हो गया है, बदल गया है, लिहाजा इससे परहेज करना चाहिए। ये जो मंगनी का मामला है, आपको मैंने बताया कि मंगनी जिसको आप समझते हैं कि लोग आए, लोग बैठें और बैठने के बाद फिर तारीख तय हो, इतना तक भी हो जाए तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई चीज ऐसी गुनाह की नहीं हो रही है। उसमें जो हरकतें की जा रही वो गलत है। मिसाल के तौर पर लड़की पर प्रेशर डाला जाता है कि तुमको गैर महरम लोग देखेंगे आके। अब मिसाल के तौर पर हमारी लड़की है, ठीक है भाई, लड़के वाले आए हैं, 2-4 लोग, बात तय हो गई, खाना पीना हो गया, कोई ऐसा मसला इसमें शरीयत के खिलाफ। अब पता चला साहब वो लड़के के मामू भी देखेंगे, खालू भी देखेंगे, बहनोई भी देखेंगे। शरीयत ने अगर उसमें से सारे मर्दों में से किसी को इजाजत दी है तो सिर्फ उसको दी है वो जो लड़के से शादी होने जा रही है, और वो भी कब, जब औरतें ये फाइनलाइज कर लें कि शादी करनी है। आखिरी मरहले में ये इजाजत दी जा सकती है कि अगर आप लोग तय हो चुके हैं, अगर लड़का देखना चाहता है तो एक झलक उसको दिखलाया जा सकता है। बैठी रहे लड़की, आठ करके लोग बातें करते रहो, लोग देख रहे। लेकिन ये कि बाकायदा प्लान से वहां से पूरी गाड़ी से लद कर आ रहे हैं और मामू खालू चचा और मोहल्ले के लोग और उनके दोस्त आ रहे हैं, एकदम हराम है। हालांकि उस लड़के को आप चौराहे पर बाजार में भले देख ले, वो बेपर्दा हो, लेकिन वहां पर इरादा नहीं है। यहाँ पर इरादे के साथ जो है बेपर्दगी कराई जा रही है। तो इसमें जो देखने वाले, एक तो उनको खुश शर्म आनी चाहिए जो आते हैं देखने, और इस किस्म की डिमांड करना कि मैं देखूंगा। लड़की वाले वैसे ही प्रेशराइज होते हैं। अब आपने उठा करके ये जो प्रेशर डाला, ये हराम का प्रेशर है। तो इस तरीके से ये जो मंगनी में जो रस्में अख्तियार की गई, वरना सिर्फ इतना अगर किया जाता कि 2-4 लोग आए हैं, बैठकर बात हो जाए, पक्की हो जाए, इश्तिहार हो जाए कि भाई लड़की की शादी तय हो गई, ताकि अब दूसरे रिश्ते आना क्या है, बंद हो जाए। उसके लिए अगर इतना किया गया, 2-4 लोग बैठकर खाना खा लिया, तो कोई शरई लिहाज से मुबाह की बात है। लेकिन जो उसकी चीजें अख्तियार की जा रही है वो क्या है, वो बहुत गलत है। अब जिनके पास पैसे हैं, दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, बात देखें तो ऐसा है कि जितना मंगनी में खर्चा है उतना गरीब की शादी हो जाए, ये इसराफ का खर्चा है। और हुजूर अकरम कुरान मजीद कहता है कि इन्नल मुबद्दिरीन कानू मिन अख्वान शयातीन, की जो क्या कहते हैं इसराफ करने वाले हैं, ये शैतान के भाई है। अच्छा, आप कहेंगे मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं करता हूं, ठीक है करता हूं, ऐसी बात भी नहीं है कि हर जगह। सवाल ये है कि उसकी वजह से एक ऐसी रस्म मुआशरे में जड़ पकड़ रही है कि अब गरीब को जब मंगनी करना है तो लड़के वाले डिमांड कर रहे हैं, भाई हम 25 आदमी आएंगे, हम 30 आदमी आएंगे। अब वो बेचारा जितने में 2-4-10 हजार रुपए जमा करके वो शादी करना चाह रहा है, वो 2-4-10 हजार तुमने उठाकर उसकी मंगनी में फुकवा दिया। तो लोग ये कहते हैं कि साहब मैं ये कर रहा हूं, मुझे पैसा दिया अल्लाह ने, ठीक है, लेकिन ऐसी रस्म नहीं अख्तियार करनी चाहिए जिससे नीचे वाले तबके को क्या है, परेशानी हो। ये सब होता क्यों है, ये आपको बताता हूं। एक वजह है इसके, ये जो हम मर्द लोग होते हैं ना, इनको डिफरेंट टाइप्स के इनके शेल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारा मिजाज होता है। ये सब अय्याशी करने का एक तरीका है। अगर हम अभी किसी के घर में कहें कि मैं आपकी औरतों के साथ बैठना चाहता हूं, जरा इनसे गप्पे मारना चाहता हूं, तो आप बनेगा मारता तुम्हें शर्म नहीं आती है, औरतों के साथ बैठोगे। ये सारी रस्में ऐसी की जाती हैं कि इसमें औरत मर्द मिले और वो मर्दों को अय्याशी करने का पूरा मौका मिले, लेकिन उसको नाम और उसका चोला और लिबास बदल दिया गया है। हकीकत में उन सबके पीछे हज़्ज़े नफ्स होता है। हज़्ज़े नफ्स समझते हैं कि अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने का अलग अलग तरीका होता है। तो ऐसी रस्में जितनी भी इजाज़त, अच्छा शरीयत की पॉलिसी डे 1 से है, पहले दिन से है कि इख्तिलात जहां पर हो, जहां पर दोनों के मिलने के चांसेस हो एक साथ, वहां पर क्या किया जाए कि ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जाए कि दोनों नहीं मिले। तो इसलिए जो है इस लिहाज से इसमें जातियां होती हैं। अच्छा, अब लड़की को देखने की जहां तक बात है, आपको मालूम है कि औरत पर जितना जुल्म करती है, गौर से सुनिएगा इस जुमले को, औरत पर जितना जुल्म करती है उतना मर्द औरत पर जुल्म नहीं करता है। इस जुमले को फिर से सुने।
इस सोसाइटी में औरत पर जितना जुल्म करती है उतना मर्द औरत पर जुल्म नहीं करता, बहुत पहले से। मिसाल के तौर पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बच्चियों को लोग जिंदा गाड़ते थे, सारे कबीले नहीं थे, तो मरता बताया था कि चंद लिमिटेड कबीले थे, उसमें सबसे बड़ा रोल माँ का होता था, माँ का रोल होता था। वो अगर शामिल नहीं होती तो बाप अकेले नहीं गाड़ सकता था। एक बात, आज जो औरतें ये चाहती हैं कि लड़का हो और लड़की अगर प्रेगनेंसी में आई है तो जाया कर दिया जाए हमल को, उसमें किसका हाथ है? उसमें भी औरत का हाथ है। औरत पे ज्यादा जुल्म करती है। यहाँ पे मामला क्या है कि जो मंगनी का मामला है, वो औरत ऐसे ऐसे अंदाज में उसको जो है इरिटेट करती लड़की को आकर के, अच्छा भाई जरा खड़े हो, चलो देखें तुम्हारा हाथ कैसा है, उसकी बात करने का तरीका क्या है, हत्ता कि जो है वो सर से दुपट्टा उठाकर तुम्हारा बाल कैसा है, ये सब कौन कर रहा है? ये सब औरत कर रही है। वो औरत ये नहीं समझ रही है कि अगर मैं ऐसा कर रही हूं तो हमारी बेटी के साथ भी ऐसा होगा। भाई देखने का मतलब ये, पहले आप तहकीक कर ले कि लड़की हाथ पैर की ठीक है कि नहीं। बहुत से तरीके हैं तहकीक करने के, उसके रिश्तेदार है, उसका आना जाना है, कहीं शादी में गई है, आप मालूम कर लें। लेकिन आकर के स्पेशली आकर के आप उसको ऐसी ऐसी हत्या की, अभी आपको तो एक तस्वीर किया था ना मंगनी पर, हत्या की हिंदुओं में बाकायदा नचा करके देखते हैं, डांस कराते हैं, और वो ताकि उससे मालूम हो कि अगर इसके कोई ऐब होगा वो तो सारी चीजें, तो यहां तक मामला बिगड़ चुका है। तो ये ऐसी हरकतें वो सारी की सारी औरतें उसके ऊपर करती हैं। तो औरत पे ज्यादा जुल्म करती है, मर्द जो है वो बदनाम है सिर्फ, लेकिन औरतें अंदर अंदर से जुल्म करती हैं। साफ जो सताती है वो किसको सताती है? औरत ही को सताती है, लड़के को नहीं सताती है, अपने औरत ही को सताती है। ऐसे ऐसे जुमलेबाजी करती है और ऐसी ऐसी टीचिंग करती है। फिर बहू भी जब सताने को उतरती है तो वो भी फिर औरत को सताती है। तो दोनों जगह औरत को सता रहे हैं। तो औरत जो है वो औरत से जुल्म बहुत करती है। तो इस तरीके से अगर देखना भी है मंगनी में, तो देखने का एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई ठीक है, बच्ची होगी, घर में आएगी, खाना पका रही होगी, आप लोग आकर के देख लें। सबसे बेहतर तो तरीका क्या है कि प्लानिंग के साथ देखने के बजाय किसी शादी में आप गए हो, बोले भाई वहां आप भी आ जाइए, देख लीजिएगा, खत्म हो गई बात। उसमें क्या होता है, एक बच्ची, अभी आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास कर्नाटक के एक लड़की का SMS आया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वहां के लोग भी तकरीरें सुनते हैं। उसने रो करके ये बात, पहले तो उसने SMS किया, फिर उसने मुझे फोन किया कि मौलाना 27 लोग अब तक मुझे देखने आ चुके हैं। अब वो बेचारी को ये किसी ने बता दिया कि नहीं साहब तुम्हारा रिश्ता बांध दिया गया है, तो वो समझा कि ये मौलाना भी है तो आमिल भी होगा, क्योंकि हर आलिम को लोग समझते आमिल भी होगा। तो उसने मुझे वहां से फोन किया कि मौलाना ये 27 लोग आए हैं, अब मैं फेडअप हो गई हूं, मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि मैं अब अपने आप को दिखलाना ही नहीं चाहती। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करती हूँ, लेकिन ये घर वाले रोजाना जो दिखाने का चक्कर कर रहे हैं, मैं दिखलाना नहीं चाहती हूँ। अगर ऐसा कोई रिश्ता बंधा है तो आप उसको खोलिए। तो एक अलग मसला है, मैं उस लाइन का आदमी नहीं हूँ। तो खैर मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा अगर तुम्हारी जिंदगी में जहां रिश्ता लिखा होगा वहां होगा, लेकिन आप बताइए कि एक औरत की जात को आपने गाजर मूली समझ रखा है? उसकी बेइज्जती, उसकी इज्जत नफ्स कोई चीज ही नहीं है। हबीबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस औरत को बहन की हैसियत से इज्जत दे, जिस औरत को बीवी की हैसियत से इज्जत दे, जिस औरत को माँ की हैसियत से इज्जत दे, जिस औरत को बेटी की हैसियत से दे, उसका उम्मती इस औरत के साथ ऐसी इस किस्म का मजाक करे, समझे? ज्यादा ये जो मंगनी का और इन सब का चक्कर है, एक आदमी को भी दिल को तकलीफ पहुंचाने का गुनाह कितना बड़ा होता है, इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मजलूम हाथ उठाता है तो ऊपर से फौरन दुआ अप्रूवल होकर के आती है, तकु दावतल मजलूम फइन बैनहु व बैन अल्लाह लैसा हिजाब, कि लोगों मजलूम के बद्दुआ से बचा करो, क्योंकि जब वो ऊपर से दुआ कर देता है तो ऊपर वाला भी उसके साथ होता है, और इसके लिए कोई शर्त नहीं होती कि वो गैर मुस्लिम है या मुसलमान है। मजलूम अल्लाह के नजदीक बहुत ही ज्यादा जो है महबूब है। ज्यादा इस किस्म की हरकतों से इस औरत से जो जुल्म हो रहा है उसको हमेशा हमको सोसाइटी में कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और लड़के वालों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारी भी लड़की है, हमारी लड़के के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस बुनियाद पर शरीयत चाहती है कि इस किस्म की जो रसूमात हैं वो जड़ से काटी जाए।
इसी तरीके से रसूमात में से यूपी में भी है, यहाँ भी है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में है। एक हल्दी लगाने की रस्म होती है, एक उपटन की रस्म होती है। इसमें होता है, में क्या है, इस सब में मर्दों और औरतों को इकट्ठा होना है। वो जो नहीं इकट्ठा हो सकते कभी, वो भी इकट्ठा होना है, और इकट्ठा होने के बाद शरीयत की धज्जियां उड़ानी है। शरीयत की धज्जी कैसे उड़ती है? कुरान मजीद कहता है कि ऐ मर्दों ऐ औरतों अपनी निगाहों को नीचे रखो। वो तो यहां तक बात करता हुआ निगाह नीचे के नहीं, निगाह ही के लिए सारा मामला किया गया है, निगाह को फेंकने के लिए ही सारा मामला किया गया है। ये तो कुरान मजीद की सराहतन खिलाफ वर्जी होने के लिए ये सारी रस्में ईजाद की गई। अच्छा, आई कहां के हैं? ये सब आई हैं गैरों से। गैरों में तो आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी, अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक एमएलए ने स्टेज पर, एक अभी न्यूज आई है, एक एमएलए ने बाकायदा वीडियो दिखलाई गई, मैंने खुद देखी। स्टेज पर एक औरत भी कोई बड़ी पोस्ट पर है, वो आगे आगे जा रही, ये पीछे पीछे जा रहा है, नाश्ता है कुछ करके आया है, उसके साड़ी में पीछे हाथ पोंछ दिया, वो वीडियो में कैच हो गया। खैर वो मसला नहीं। उसने जब इनसे कहा तो उसने कहा कि आप तो मेरी भाभी लगती हैं। ये देवर भाभी ने भी अय्याशी का एक तरीका बना रखा है। उसने जैसे ही उसको टोका, जब बाद में मालूम हुआ कि हमारी साड़ी के पल्लू से इसने पूछा और उसकी बेइज्जती महसूस की, जैसे उस औरत ने टोका फौरन उसने जवाब में क्या कह दिया, नहीं आप तो मेरी भाभी है, पूरी दुनिया भाभी है। भाभी लफ्ज में और देवर लफ्ज में खुद जो है अय्याशी मौजूद है। देवर है क्या? आपको मालूम है हिंदी लफ्ज है। देवर के माने होते हैं द्यूवर, दूसरा शौहर। अब एक औरत अगर किसी को दूसरा शौहर बोल रही है तो वो शौहर की तरह एक्टिंग करने लगता है उसके साथ। ये तो लफ्ज में जो है शरारत मौजूद है। तो हालांकि शरीयत ज्यादा ही क्या है, उसको निस्बती बहन बोलती है कि घर पे एक औरत आई है, हमारे भाई की बीवी है, चाहे छोटे भाई की बीवी है या बड़े भाई की बीवी है, वो हमारी बहन की तरह है। उसे उठा करके भाभी का टाइटल दे दिया गया और भाभी के नाम पर सारी अय्याशियां हो रही। स्टेज पर बंदा अय्याशी कर रहा है और वो भाभी और देवर के चक्कर में उठा करके चाह रहा है कि पूरा केस खत्म कर दिया जाए कि हम भाभी देवर है, पूरी दुनिया भाभी देवर है। ये सब क्या है? सब अय्याशियों के तरीके हैं। हमारे नबी की यही आपको एक मरतबा बताया था कि हिंदुस्तान में खासकर इस्लाम आया, इस्लामी तहजीब नहीं आ पाई। इस्लामी तहजीब हमने अपनी जिंदगी में ढाली ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले से अपने आप को समझते थे कि हम वेल सिविलाइज्ड हैं, बड़े ही हम मुहज्जब लोग हैं, लिहाजा इस्लाम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया हमने बहुत हजारों करोड़ों की तादाद में, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के माना नहीं समझ सके आज तक, और न ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा ये जितनी चीजें ऐसी, हल्दी है, यूपी में उपटन की रस्म होती है, सरसों को पीस करके, अब वो उपटन की जब रस्म होती है तो उसमें वो बेहूदगियां होती हैं कि लड़के लड़की को उपटन लगाना है और बाकायदा दौड़ा दौड़ा के लगाया जाता है। ये सब अय्याशी के तरीके हैं। इस मुस्लिम सोसाइटी एक जबरदस्त मुहज्जब किस्म की सोसाइटी को डेवलप किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमको चाहिए कि अच्छा, ये आप नहीं सोचे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए आपके इस किस्म की रसूमात को खत्म करने का सवाब मिलता है और धीरे धीरे ही खत्म होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डेवलप होने में भी इतने हजारों साल लिए हैं, 1-2 दिन में तो नहीं डेवलप हुई चीजें। लिहाजा आप जहां पर हों, शरीयत में जब ये समझें कि इस्लाम का मतलब होता है कि कंप्लीट दाखिल होना, इस्लाम का माना होता है कि इस्लाम में कंप्लीट दाखिल होना, हमारा मिजाज किनारे हो जाता है, हम तो शरीयत के ताबे हो जाते हैं। जब हम शरीयत के ताबे हुए हैं, लिहाजा हर चीज में हमको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको पूछना चाहिए, उनकी सुन्नत देखनी चाहिए। 1,24,000 सहाबा की तरबियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। 1,24,000 का अमल हमारे सामने मौजूद है कि कितनी बिगड़ी हुई कौम को आपने उठा करके एक बेहतरीन किस्म का खूबसूरत सा फूल बनाया, खुशबू वाला है, और उस थोड़े से अरसे में, हालांकि आपसे ज्यादा उनके यहाँ रसूमात थी, आपसे ज्यादा जिना कोई चीज नहीं थी। ये सारी रस्में तो सिर्फ जिना के मुकदमात हैं, वहां तो जिना ही हो रहा था,
लूट मार घसोट जिनका पेशा था, उन सारी कौमों को आपने डेवलप करके एक ऐसी बेहतरीन किस्म का नमूना हमारे सामने पेश किया। लिहाजा ये तो वो कौम रोए जिनके पास कोई चीज मौजूद नहीं, अपनी मर्जी से सारी चीजें। हमको तो इस बात पर फख्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी उम्मत से पैदा किया कि सारी चीजें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताकर कि यहां तक कि आपने बताया कि पेशाब कैसे किया जाए। तो ऐसे नबी के हम मानने वाले, उसका हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस किस्म के रसूमात से हमको परहेज करना चाहिए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हम आगे इसके बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।